Let's start with the second chapter today. Solutions. क्या होते हैं solutions? What are solutions? They are homogeneous mixtures of two or more components. ठीक है? So अगर हम solutions को define कर रहे हैं, solutions हमारे क्या है? Homogeneous mixtures of two or more components, right? In our day-to-day life, we come across many millions and billions of solutions. ठीक है? एक तो आप सुबह उठते ही you have जो आप water drink करते हो, that is not always pure water. It's not a pure substance. It is a mixture of what? बहुत सारे उसके अंदर impurities, of course, but minerals also they are present. Dissolved minerals भी उसमें present रहते हैं. ठीक है? फिर उसके बाद ब्लड हमारा जो है दैट इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी कंपोनेंट्स. उसमें प्लाज्मा होता है, उसमें हेमोग्लोबिन होता है, उसमें आयरन होता है. वो सारे के सारे जो कंपोनेंट्स हैं दे फॉर्म अ होमोजेनियस मिक्सचर. ठीक है? जो रोज हम लोग कोलास पीते हैं, कोको कोला पी रहे हो आप या पेप्सी पी रहे हो या थम्स अप पी रहे हो, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डिसॉल्व रहती है अंडर हाई प्रेशर. सो दैट इज आल्सो अ सॉल्यूशन. And the biggest, most common example of solution is your air, which is a mixture of gases. ठीक है? So हम लोग homogeneous mixture of two or more components को solution बता रहे हैं. Depending upon the number of components, we have binary solution. Binary solution आपका क्या हुआ? It is a solution which consists of only two components. ठीक है? जैसे एग्जाम्पल आप ले लो, शुगर प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर. ये जो है दे आर एग्जाम्पल्स ऑफ बाइनरी सॉल्यूशंस, राइट? जिसमें टू ही कंपोनेंट्स है, वन विच इज नोन एज द सॉल्यूट एंड द अदर वन विच इज नोन एज अ solvent. ठीक है? Solute आपका जो होता है that is always in lesser quantity, whereas solvent is always in larger quantity. ठीक है? उसी तरह से आपके पास ternary solutions आती हैं. Ternary solutions क्या हुई? Which have three components. Which has three components. ठीक है? जैसे आप salt plus sugar plus water का solution ले सकते हो, तो उसमें दो solutes हो गए आपके और एक solvent हो गया. ठीक है? So that is a ternary solution. Salt plus sugar plus water. ये आपका ternary solution हो गया. उसी तरह से आपका quaternary solution होता है. Quaternary solution में क्या होगा? There are going to be more than three components, right? So इस पूरे चैप्टर में हम लोग concentrate करेंगे सिर्फ किसके ऊपर? Binary solution के ऊपर, जिसमें एक ही solute है और एक ही solvent है. Solute जो कि lesser quantity में है और solvent जो कि greater quantity में है. ठीक है? So let's classify your solutions. We have three major type of solutions. Let's see कौन-कौन से है हमारे पास. The first one that is known as your liquid solutions. ठीक है? Liquid solutions आपके वो होते हैं जिसमें कि solvent हमारा liquid होगा. ठीक है? So let's say कौन-कौन सी तरह के हो सकते हैं आपके liquid solutions. We are saying that your liquid is going to be the solvent in this case. ठीक है? So first हमारा जो होएगा that will be solid plus liquid, right? Solid plus liquid का कोई example दे दो. NaCl and
वाटर, शुगर इन वाटर, ये सारे आपके सॉलिड प्लस लिक्विड के हैं। NaCl प्लस वाटर, शुगर प्लस वाटर। शुगर जब हम बोलते हैं तो ऑलवेज सुक्रोज इज टेकन एज स्टेबल शुगर जो आप खाते हो। जो C6H12O6 है दैट इज योर ग्लूकोज। ओके, इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर, राइट। सेकेंड आपका आ जाता है liquid in liquid solutions, right? Example which we can take over here is ethyl alcohol plus water, ethyl alcohol plus water, ठीक है। थर्ड आपका जो आ जाता है that is gas plus liquid, right? Example इसका आपका आ गया aerated drinks, aerated drinks या soda water। एरेटेड ड्रिंक्स और सोडा वाटर, ठीक है। एरेटेड ड्रिंक्स आपके कौन से हैं? ये सारे कोक, पेप्सी, थम्स अप, ये सारे आपके एरेटेड ड्रिंक्स होते हैं। और सोडा वाटर जो आपका सोडा है दैट इज योर सोडा वाटर, ठीक है। द सेकंड टाइप ऑफ सॉल्यूशंस वी आर गोइंग टू डू इज योर गैस solutions. Now in case of gas solutions the solvent is going to be gas, right? The solvent that is going to be a gas. Example we can take solid plus gas, right? क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं हम इसका? सॉलिड ऑन गैस, गैस आपकी ज्यादा क्वांटिटी में है और सॉलिड आपकी लेसर क्वांटिटी में है, दैट इज योर एग्जाम्पल। हम इसका क्या ले सकते हैं? सारे के सारे कैटलिस्ट ले सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन ओवर पैलेडियम, ठीक है। हाइड्रोजन ओवर पैलेडियम दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ योर सॉलिड एंड गैस, ठीक है। सेकेंड आपका आ गया लिक्विड और गैस। एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं हम लिक्विड और गैस का? गैस आपका सॉल्वेंट है और लिक्विड आपका सॉल्यूट है, मॉइस्चर है ना। सो मॉइस्चर इज एन एग्जाम्पल। एटमॉस्फेयर के अंदर जो वाटर होता है दैट इज नोन एज योर मॉइस्चर, तो वो हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है। थर्ड आपका आ गया गैस प्लस गैस, एयर, सो एयर, ठीक है। द थर्ड टाइप ऑफ सॉल्यूशंस व्हिच वी विल डू, दे आर योर your solid solutions. Solid solutions, right? In this case, in solid solutions, we say that what is going to be your solvent? Solid is going to be your solvent, ठीक है। So example हम ले सकते हैं इसमें। The first one is solid plus solid. For example, alloys है homogeneous mixtures। alloys में आपके पास क्या आ जाता है? brass आ जाता है, bronze आ जाता है, gun metal आ जाता है, bell metal आ जाता है, tin is a metal, ठीक है। So alloy is basically mixture of homogeneous mixtures of metals। हमने पिछले चैप्टर में क्या था? substitutional solids में हमने क्या था कि एक जो आपका सॉलिड होता है उसका मॉलिक्यूल रिप्लेस हो जाता है किसी और के सॉलिड से। क्योंकि किसी और के मॉलिक्यूल से, क्योंकि दे बोथ हैव द सेम साइज। सो वो आपका सॉलिड एंड सॉलिड सॉल्यूशन है। सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड्स भी इसी के अंदर आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ गया
लिक्विड ऑन सॉलिड, क्या एग्जांपल ले सकते हैं हम? जैसे आपके स्टोन्स वगैरह है वो जब बारिश में गीले हो जाते हैं, तो उसको आप अगर लेमैन लैंग्वेज में बोलो तो वो भी आपका लिक्विड ऑन सॉलिड ही हुआ, राइट? लिक्विड ऑन सॉलिड का और एग्जांपल क्या हो सकता है? एनी अदर एग्जांपल यू कैन थिंक ऑफ? अगर आप चौक को इंक के अंदर डालते हो तो वो भी आपका जो है उसमें भी लिक्विड इंक जो है वो चौक को सराउंड कर लेगी, सो वो भी आपका लिक्विड और सॉलिड का एग्जांपल है, ठीक है? देन द थर्ड एग्जांपल इज योर गैस प्लस सॉलिड, राइट? इसमें जो आप एग्जांपल ले सकते हो दैट इज योर गैस ऑन चारकोल मास्क्स। कोल माइंस में आपके जो वर्कर्स वगैरह काम करते हैं, कोल माइंस बहुत ज्यादा अंडर द अर्थ क्रस्ट होती है, तो वहां पे बहुत पॉइजनस गैसेस होती है, राइट? तो जो लेबरर्स हैं या जो वर्कर्स हैं कोल माइंस में जो काम कर रहे हैं, उनमें टेंडेंसी रहती है, ऑब्वियसली एज ह्यूमन बीइंग्स उनमें टेंडेंसी रहेगी कि वो उन पॉइजनस गैसेस को एब्जॉर्ब कर लें, ओके? उससे रोकने के लिए उनको चारकोल मास्क्स दिए जाते हैं। जो चारकोल मास्क है उनमें टेंडेंसी होती है कि वो पॉइजनस गैसेस को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और इनहेल करने नहीं देती ह्यूमन बीइंग को, ठीक है? सो उस चारकोल मास्क जो सॉलिड है उसके ऊपर आपका गैसेस एक होमोजेनियस मिक्सचर बना लेते हैं, सो दैट इज व्हाई योर गैस एंड सॉलिड गिव्स अस एन एग्जांपल ऑफ गैस ऑन चारकोल मास्क्स, ठीक है? सो दीज आर योर थ्री टाइप्स ऑफ सॉलिड्स व्हिच वी आर गोइंग टू डिस्कस। जो सबसे ज्यादा हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में वो आपकी लिक्विड सॉल्यूशंस है। लिक्विड सॉल्यूशंस में हमने सॉलिड लिक्विड भी करनी है, लिक्विड लिक्विड भी करनी है और गैस लिक्विड भी करनी है, तीनों टाइप की हम करते हैं, ठीक है? बिफोर गोइंग इनटू डिटेल्स ऑफ योर टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, हमें पता होना चाहिए कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आपका एक सॉल्यूशन के अंदर कितना प्रेजेंट है, ठीक है? सो वो हम किस तरह से करते हैं, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को हम एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है? अब कंसंट्रेशन आपका क्या हुआ? कंसंट्रेशन इज द amount of solute dissolved in a specified amount of solvent, ठीक है? amount of solute dissolved in a specified amount of solvent, that is your concentration. concentration express करने के लिए हमारे पास बहुत सारे methods होते हैं. Let's discuss them one by one. The first method that is known as your mass percentage. ठीक है? अब अगर हम एक बाइनरी सॉल्यूशन ले रहे हैं AB, right? Let's say the mass of A, that is WA, and the mass of B, that is WB. ठीक है? So अगर हमको percentage of mass percentage of A निकालनी है, that will be equal to weight of A upon total weight of both the components into 100. ठीक है? और परसेंटेज ऑफ B निकालनी है, then that is equal to weight of B total weight into 100. ठीक है? This is your mass percentage. जब हम लोग masses consider कर रहे हैं दोनों components के भी, और total में भी हम क्या ले रहे हैं, हम mass ही ले रहे हैं, ठीक? सेकेंड आपकी आती है वॉल्यूम परसेंटेज, राइट? वॉल्यूम परसेंटेज में भी अगेन बाइनरी सॉल्यूशन ले रहे हैं AB. वॉल्यूम ऑफ A is VA
and volume of B is VB, then volume percentage of A, that is going to be equal to volume of A upon total volume into 100, right? उसी तरह से percentage of B, that is equal to volume of B total volume into 100, ठीक है। अब अगर सपोज आपके पास एक कंपोनेंट जो है वो बहुत ही कम है और दूसरा कंपोनेंट आपका बहुत ही ज्यादा है, तो उसकी कंसंट्रेशन जो हम एक्सप्रेस करते हैं वो हम एक्सप्रेस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पीपीएम। पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम। पीपीएम हम कहाँ यूज कर रहे हैं? अगर आपकी किसी एक कंपोनेंट की वैल्यू बहुत ही कम है या मास बहुत कम है और दूसरे कंपोनेंट का जो मास है वो बहुत ज्यादा है, तो तब हम पीपीएम यूज करते हैं, ठीक है। अब जो पीपीएम आपका है दैट इज इक्वल टू 10⁻⁶। जनरली जो ये मेथड हम यूज करते हैं, दिस इज टू कैलकुलेट amount of pollutant in the atmosphere, ठीक है। सो पॉल्यूटेंट्स आपके एटमॉस्फेयर में कितने हैं उसके लिए हम पीपीएम यूज करते हैं, राइट। सो इसमें हम क्या लेंगे? वेट ऑफ कंपोनेंट ए, हम अज्यूम कर रहे हैं कि जो आपका A है दैट इज इन वेरी लेसर क्वांटिटी, सो वेट ऑफ कंपोनेंट A अपॉन टोटल वेट इनटू 10⁻⁶। जैसे आप परसेंटेजेस में 100 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो, यहाँ पे आप 10⁻⁶ के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है। फोर्थ आपका जो मेथड आता है दैट इज मोलारिटी। मोलारिटी को हम कैपिटल M के साथ डिनोट करते हैं, ठीक है। एंड मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट। इस पूरे चैप्टर में हम A को सॉल्वेंट लेंगे और B को सॉल्यूट लेंगे, ठीक है। सो number of moles of the solute per liter of the solution, where your NB is equal to number of moles of the solute and V that is equal to volume of solution in liters, ठीक है। अगर इन केस आपको वॉल्यूम मिलीलीटर्स में दिए रखी है तो ये आपका आ जाएगा into 1000। अब ये 1000 हम यहाँ क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि हमको मिलीलीटर्स वॉल्यूम को कन्वर्ट करना है इन लिटर्स, ठीक है। यहाँ पे आपकी जो वॉल्यूम दी गई है दैट इज इन ml, तो ml को लिटर्स में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग न्यूमरेटर को 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब आपको पता है कि नंबर ऑफ मोल्स आपके 11th में करे हैं, नंबर ऑफ मोल्स आपके क्या हुए? दैट इज इक्वल टू वेट ऑफ द सोल्यूट अपॉन मोलर मास, राइट। Nb is equal to weight of the solute upon molar mass, तो हम यहाँ पे Nb की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। Wb into 1000 upon V और into Nb, ठीक है। Where Wb is the weight of the solute given, Nb is the molar mass of the solute।
Okay, so we say that your molarity is depending upon volume, वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड कर रही है ना, तो इट इज नॉट अ गुड मेथड टू एक्सप्रेस कॉन्सेंट्रेशन। ओके, क्यों ऐसा बोल रहे हैं हम बोल रहे हैं कि मोलैरिटी इज नॉट अ गुड मेथड टू एक्सप्रेस concentration because it depends upon volume. Because it depends upon volume. ठीक है, अब वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ एक्सपैंड हो जाती है, वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी हो जाती है, तो क्योंकि वॉल्यूम आपकी एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट हो रही है इसलिए मोलैरिटी भी आपकी चेंज होती रहेगी विद टेम्परेचर, तो इसलिए मोलैरिटी दैट इज नॉट अ वेरी गुड मेथड, राइट। यूनिट्स जब हम मोलैरिटी की करें यूनिट्स दैट इज इक्वल टू मोल्स पर लीटर, ठीक है। सो लेट्स डू क्वेश्चंस ऑन योर मोलैरिटी फर्स्ट। एक क्वेश्चन लिखते हैं, योर क्वेश्चन इज कैलकुलेट द मोलैरिटी of 40 grams of NaOH dissolved in 600 centimeter cube of solution। ठीक है, अगर सपोज आपको इस तरह का एक क्वेश्चन आ जाता है तो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको मोलर मास निकालना पड़ेगा NaOH का, तो मोलर मास ऑफ NaOH आपका क्या आ गया 23 प्लस 16 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 40। फिर हम फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं मोलैरिटी का, मोलैरिटी इज इक्वल टू WB, WB हमें कितना दिया हुआ है 40 into 1000, मोलर मास भी हमने कितना निकाला 40, ठीक है, और वॉल्यूम हमें कितनी दी है 600। अब यहाँ पे हमने 1000 के साथ क्यों मल्टीप्लाई करा, एंड 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 मिलीलीटर, ठीक है। सो क्योंकि आपका 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 मिलीलीटर, इसलिए हम यहाँ पे 1000 के साथ डिवाइड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। ये आपका कट गया, ये भी आपका कट गया, राइट। So what will be the answer? 1.6 molar, ठीक है। 40 आ जाएगा, 6 6 36 आ गया, so 1.66 मोलर आ जाएगा इसका आंसर। इसको आप मोलर भी लिख सकते हो, 1.6 मोल्स पर लीटर भी लिख सकते हो, ठीक है, क्लियर हो गया। उसी तरह से एक क्वेश्चन मास परसेंटेज पे करके देखते हैं। योर क्वेश्चन इज कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज इन वाटर if 2 grams of glucose is dissolved in 60 grams of water, ठीक है। अब इसमें आपको वेट ऑफ ग्लूकोज दिया हुआ है 2 ग्राम्स, राइट, और वेट ऑफ वाटर दिया हुआ है 60 ग्राम्स, ठीक है। टोटल वेट
आपका कितना आ जाएगा 62, ठीक है। परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज कितनी आ गई 2 डिवाइडेड बाय 62, तो ये आपका कितना आ जाता है 32 क्यों 31 आ गया, 2 से डिवाइड करना है ना आपने 62 को, 1/31 आ जाएगा ये 1/31 into 100 which will be equal to how much 3.2%, ठीक है। अब वाटर की परसेंटेज निकालने के लिए आप 100 में से 3.2 को माइनस कर सकते हो क्योंकि आपके पास दो ही कंपोनेंट्स है, सो 100 minus 3.2 that will come equal to 10 divided by 2 is 8, 9 point कितना आएगा 6, 69.8 96.8. oh sorry 96.8 96.8, ठीक है, क्लियर हो गया। सो दिस इज योर परसेंटेज ऑफ वाटर, राइट। सो देन वी गो ऑन टू आवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज मोलैरिटी। मोलैरिटी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं बाय स्मॉल m, राइट। और मैथमेटिकली मोलैरिटी को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट। अब यहाँ पे आपने सिर्फ वेट सॉल्वेंट का लेना है, सोल्यूशन का नहीं। यहाँ पे हमने किसका लिया था वॉल्यूम सोल्यूशन का लिया था ना, यहाँ पे हम लोग वेट किसका लेंगे सिर्फ सॉल्वेंट का, ठीक है। सो NB अब आपका क्या आ जाता है WB upon NB, ओके। और अगर आपका WA ग्राम्स में दिया हुआ है तो ये आपका क्या बन जाएगा into 1000, ठीक है। दैट इज योर WA is in grams. Let's put the value of NB into WA। मोलैरिटी आपकी वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है, तो मोलैरिटी आपकी टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होती। मोलैरिटी does not change with temperature, right। मोलैरिटी डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर क्योंकि वो वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड नहीं हो रही है, और यूनिट्स इसके क्या आ जाएंगे यूनिट्स विल बी मोल्स पर केजी। मोल्स पर केजी, ठीक है। मोलैरिटी और मोलैरिटी में हमें फर्क पता चल गया। मोलैरिटी में हम लोग वॉल्यूम कंसीडर करते हैं सॉल्यूशन की, और मोलैरिटी में हम लोग वेट कंसीडर कर रहे हैं किसका सॉल्वेंट का। अब अगर सपोज आपको सॉल्यूशन की वॉल्यूम दे रखी है क्वेश्चन में, ठीक है, और आपको डेंसिटी भी दे रखी है, तो आप उससे मास कैलकुलेट करोगे। आपको पता है कि डेंसिटी दैट इज इक्वल टू व्हाट मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। सो मास आपका क्या आ जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम दैट इज इक्वल टू मास। अब ये जो आपके पास मास आया है दिस इज द मास ऑफ द सॉल्यूशन, क्योंकि आपको डेंसिटी भी सॉल्यूशन की दे रखी है, वॉल्यूम भी आपको सॉल्यूशन की दे रखी है, तो ये जो मास आएगा दिस विल बी द मास ऑफ द सॉल्यूशन। मास ऑफ द सॉल्वेंट आप कैसे निकालोगे फिर मास ऑफ सॉल्वेंट दैट
इज इक्वल टू व्हाट? आपके पास मास ऑफ द सॉल्यूशन है, मास ऑफ द सोल्यूट भी आपको दे रखा होगा क्वेश्चन में, तो आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करके मास ऑफ द सॉल्वेंट निकाल दोगे। तो मास ऑफ द सॉल्वेंट आपका क्या हुआ? मास ऑफ सॉल्यूशन मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। जनरली इसका जो मोलैरिटी का आपका क्वेश्चन होता है वो इसी तरह से दे रखा होता है, ठीक है। सो लेट्स डू वन क्वेश्चन ऑफ मोलैरिटी आल्सो। मोलैरिटी का जब हम एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन है आपका कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ अ solution of 20 grams of urea, 20 grams of urea in 400 grams of water। एक सिंपल सा हमने क्वेश्चन करना है, ठीक है। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है सबसे पहले? The formula of urea is NH2CONH2, ठीक है। इसका जब आप मोलर मास निकालते हो, मोलर मास इसका 60 निकलेगा, राइट। सो अब अगर हमको मोलैरिटी निकालनी है तो मोलैरिटी आपकी क्या हो गई? वेट गिवन आपका कितना है? 20। यूरिया का वेट हमको 20 दिया हुआ है, ठीक है, इनटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ यूरिया व्हिच इज 60 इनटू 400, ठीक है। तो आपका ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है और ये भी कट रहा है। 4 5 जा 20 भी आ गया। 50 डिवाइडेड बाय 6 8.2। इसको आप स्मॉल m के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। मोलर सॉल्यूशन बुलाएंगे हम, 8.2 मोलर सॉल्यूशन। ठीक करिए कैलकुलेशंस। 20 into 1000 upon 65 ही आएगा। 5 divided by 6। So 5 divided by 6 आपका कितना आता है? 0.82। 0.82, ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसके बाद जो हम लोग करेंगे the sixth method, that is a very very important method because ये मेथड आपका पूरे चैप्टर में यूज होगा, which is your mole fraction। ठीक है, very 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 important। मोल फ्रैक्शन को हम x के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। मोल फ्रैक्शन आपका क्या हुआ? अगेन हम बाइनरी सॉल्यूशन दे रहे हैं AB, राइट। इसका XA है, इसका XB है, ओके। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A Na आ गए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B Nb आ गए, ठीक है। सो XA आपका क्या होगा? Number of moles of A upon total number of moles। Number of moles of A upon total number of moles, that is the mole fraction of A। ठीक है, उसी तरह से mole fraction of B is number of moles of B upon total number of moles। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि न्यूमरेटर में भी हमारे पास मोल्स हैं, डिनोमिनेटर में भी हमारे पास मोल्स हैं, तो इसलिए जो मोल फ्रैक्शन होती है इट डज नॉट हैव एनी यूनिट।
यूनिटलेस है ये, इसके कोई भी यूनिट्स नहीं है। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि ऊपर भी मोल्स है, नीचे भी मोल्स है, दोनों मोल्स मोल्स कट गए आपके, है ना? सो इट हैज नो यूनिट्स, राइट? टोटल जो मोल फ्रैक्शन है किसी भी सॉल्यूशन का होता है XA plus XB, that is always equal to 1, ठीक है? अगर सपोज आपके पास बाइनरी की जगह टर्नरी सॉल्यूशन होता तो उसमें आपके पास 3 कंपोनेंट्स हैं, इवन देन आप तीनों का मोल फ्रैक्शन निकालोगे XA, XB, XC, तब भी आपका XA plus XB plus XC is going to be equal to 1, ठीक है? सो हम बोल रहे हैं कि हमने एक और कंपोनेंट ले लिया है XC, राइट? सो XC आपका क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है? और हम बोल रहे हैं कि ऑलवेज टोटल मोल फ्रैक्शन दैट इज इक्वल टू 1। क्लियर हो गया? ऑलवेज योर टोटल मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1। NB हम कैसे निकालेंगे? चलो NA कैसे निकालेंगे? सबसे पहले W of A, weight given of A upon its molecular mass, ठीक है? उसी तरह से आपका NB क्या आ जाएगा? weight of B upon molar mass, राइट? उसी तरह से आपका NC क्या आ गया? weight of C upon molar mass, ठीक है? सो ये आपका मोल फ्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारा इस पूरे चैप्टर में यूज होगा। इसे कैलकुलेट करना आना सबसे ज्यादा जरूरी है, राइट? ओके, सो एक क्वेश्चन इसका करके देख लेते हैं हम। 70 grams of glucose and 40 grams of NaCl are dissolved in 900 grams of water. Calculate the mole fraction of each component. ठीक है? अब फर्स्ट स्टेप इसमें क्या रहेगा कि हमको सबके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे, राइट? सो सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज कैलकुलेट करते हैं, तो आपके क्या आ जाएंगे? 70 वेट गिवन अपॉन मोलर मास ऑफ ग्लूकोज इज 180, ठीक है? सो ये आपका कट गया, 7 डिवाइडेड बाय 18 आपका कितना आ जाता है? 0.4 से जाएगा 0.3, एक और डिजिट चाहिए 0.3, कितना है? 0.38, ठीक है? फिर आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl निकालोगे। NaCl आपको 40 दिया हुआ है, मोलर मास ऑफ NaCl विल बी 58.5, ठीक है? मोलर मास ऑफ NaCl that is going to be equal to 58.5, ठीक है? उसी तरह से फिर आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकालोगे, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर आपके कितने निकल जाएंगे? कितना दिया? 900 डिवाइडेड बाय 18, 50, सो ये आपके 50 मोल्स आ गए। इसको करो कैलकुलेट, ये कितने आते हैं? 40 डिवाइडेड बाय 58.5, 0.0
6 8 किसे जाएगा ये 4.6 0.6 आ रहा है, 0.6 ले लेते हैं। ठीक है, अब हमको मोल फ्रैक्शन सबसे पहले एक और डिजिट लो, 2 digits after the decimal। कितना आ रहा है? Eight? चलो let's take it as 0.68 approximately, right? अब आप पहले निकालोगे मोल फ्रैक्शन, पहले टोटल मोल फ्रैक्शन इसकी टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स आपके कितने आ जाते हैं? 16, 7 और 3 10, 51.06। ठीक है, अब आपने निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज। मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज आपका कितना आ गया? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज अपॉन 51.06, राइट? उसी तरह से मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl 0.68 अपॉन 51.06। ठीक है, अब मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर आप कैसे निकाल सकते हो? 1 माइनस नंबर ऑफ मोल्स, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl। ठीक है, सो इस तरह से आपने कैलकुलेट करना है। क्लियर हो गया? देन द लास्ट आपका मेथड इज नॉर्मैलिटी। We will do some more questions tomorrow इसके। We finish up with the theoretical part today, तो कल थोड़े से और questions करेंगे, ठीक है? The next is your नॉर्मैलिटी। नॉर्मैलिटी को हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं। नॉर्मैलिटी आपकी क्या हो गई? नॉर्मैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ gram equivalents number of gram equivalents upon volume in milliliters into 1000। ऑलवेज अगर आप वॉल्यूम मिलीलीटर में लोगे या आप वेट ग्राम्स में लोगे तो आपको 1000 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, सो ये क्या हुआ? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस जो है दैट इज इक्वल टू वेट ऑफ द सॉल्यूट गिवन, ठीक है, अपॉन इट्स इक्विवेलेंट वेट, अपॉन इट्स इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, अब जो इक्विवेलेंट वेट है यहाँ पे, ये हम जैसे हमने अभी तक क्या किया, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट गिवन अपॉन मोलर वेट, राइट? तो हम यहाँ पे कर रहे हैं एक नया टर्म, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंस दैट इज इक्वल टू वेट गिवन अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, अब इक्विवेलेंट वेट कैसे कैलकुलेट करेंगे? इक्विवेलेंट वेट हम डिफरेंट सब्सटेंसेस का डिफरेंट मेथड्स के साथ कैलकुलेट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमको इक्विवेलेंट वेट एसिड्स का कैलकुलेट करना है। ओके, सो एसिड्स का इक्विवेलेंट वेट जो है दैट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन बेसिसिटी ऑफ द एसिड, राइट? तो अब एक और नया टर्म आ गया, बेसिसिटी। बेसिसिटी आपकी क्या होती है? Basicity is the number of replaceable
replaceable H positive ions in a acid. Number of replaceable H positive ions in a acid. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग एसिड्स लेते हैं डिफरेंट और उसकी बेसिसिटी प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं. फर्स्ट अगर हम HCl ले रहे हैं, HCl आपका डिसोसिएट होता है एज H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, तो इसमें बेसिसिटी कितनी हो जाएगी 1. ठीक है, उसी तरह से H2SO4 में बेसिसिटी कितनी हो गई 2. राइट, H3PO4 में बेसिसिटी कितनी हो गई 3. ठीक है, H3PO3 में बेसिसिटी 2 होती है. नजर हमें कितनी आ रही है 3, पर होती 2 है. दैट इज बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑल द 3 एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस. उसी तरह से H3PO2 में 1 होती है. ठीक है, नाउ लेट्स सी इन तीनों के स्ट्रक्चर्स में क्या वो है जिससे हमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ बेसिसिटी आ रही है. जब हम H3PO4 का स्ट्रक्चर करते हैं तो हम देखते हैं कि कोई भी हाइड्रोजन डायरेक्टली बॉन्डेड नहीं है फॉस्फोरस के साथ, है ना. ये आपका H3PO4 का स्ट्रक्चर है, मतलब कि ये जो बॉन्ड है हाइड्रोजन के साथ, ये तीनों हमारे ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड है. राइट, अब अगर ये तीनों ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड है तो हम इन तीनों हाइड्रोजन्स को रिप्लेस कर सकते हैं या इन तीनों हाइड्रोजन्स को हम निकाल सकते हैं. इसलिए इसकी बेसिसिटी कितनी आती है 3. जब हम H3PO3 की तरफ चलते हैं तो इसका स्ट्रक्चर ये होता है. अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक हाइड्रोजन डायरेक्टली बॉन्डेड है फॉस्फोरस के साथ, है ना. सो उस हाइड्रोजन को हम रिप्लेस नहीं कर सकते. हम सिर्फ उसी को रिप्लेस कर सकते हैं जो एज OH बॉन्डेड है टू द फॉस्फोरस, या उसी हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकते हैं जो ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड है. उसी तरह से जब आप H3PO2 में जाते हो तो H3PO2 का जो स्ट्रक्चर है वो ये है. ओके, अब यहां पे सिर्फ एक ही हाइड्रोजन को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं. ठीक, अब अगर हम ऑक्सैलिक एसिड लें, ऑक्सैलिक एसिड आपका हाइड्रेटेड है. हाइड्रेटेड का मतलब इट हैज 2 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. बेसिसिटी इसकी 2 ही होगी. जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के हाइड्रोजन्स हैं वो रिप्लेस नहीं होते. सो इसमें 2 ही हाइड्रोजन्स आपके रिप्लेस होंगे, इसलिए इसकी जो बेसिसिटी है दैट इज गोइंग टू बी 2. राइट, उसी तरह से अगर हम CH3COOH लें, एसिटिक एसिड, तो इसमें भी सिर्फ ये वाला जो आपका हाइड्रोजन है ये रिप्लेस होगा. ये 3 हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं हो सकते. सो इसकी भी बेसिसिटी जो होगी वो कितनी होगी, इट इज गोइंग टू बी 1. राइट, सो इस तरह से आप एसिड्स का निकालते हो इक्विवेलेंट वेट, इट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन बेसिसिटी. ठीक, फिर हम निकालते हैं second is your equivalent weight of bases. bases का equivalent weight आपका कैसे निकलेगा, that is equal to molecular mass divided by acidity of the base. ठीक है, और एसिडिटी जो है वो क्या हुई, दैट इज नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH नेगेटिव आयंस.
नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH नेगेटिव आयंस। ठीक है, यहाँ पे जैसे आपने KOH लिया तो KOH की एसिडिटी 1 होगी। ठीक है, अगर आप बेरियम हाइड्रोक्साइड ले रहे हो तो उसकी बेसिसिटी 2 होगी, है ना। और अगर आप एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ले रहे हो तो उसकी बेसिसिटी 3 होगी। ठीक है, उसी तरह से आप सॉल्ट्स का भी इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट कर सकते हो। सॉल्ट्स का इक्विवेलेंट मास दैट इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन total positive valency, right? Molar mass upon total positive valency. So total positive valency को कैसे हम कैलकुलेट करते हैं? NaCl, इसके ऊपर total positive valency is 1. ठीक है, बेरियम क्लोराइड total positive valency is 2 and एल्यूमिनियम क्लोराइड टोटल पॉजिटिव वैलेंसी इज 3। तो इससे हमने मोलर मास किसका लेना है? पूरे NaCl का लेंगे। उसी तरह से यहाँ पे भी BaCl2 का लेंगे और AlCl3 का लेंगे। ठीक है, NaCl के मोलर मास को हम लोगों ने 1 के साथ डिवाइड करना है, BaCl2 को 2 के साथ और AlCl3 को 3 के साथ। ठीक है, वैसे ही ऊपर आपका सेम आ जाएगा। आपने KOH का पूरा मोलर मास लेना है डिवाइडेड बाय 1, बेरियम हाइड्रोक्साइड का पूरा मोलर मास लेना है डिवाइडेड बाय 2 और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का पूरा मोलर मास लेना है डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, अब नॉर्मैलिटी आल्सो डिपेंड्स ऑन वॉल्यूम। आप देख सकते हो यहाँ पे, क्योंकि नॉर्मैलिटी वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड कर रही है तो ये भी टेम्परेचर के साथ चेंज हो जाती है। ठीक है, और यूनिट्स इसके क्या आ जाएंगे? ग्राम इक्विवेलेंस per liter, gram equivalence per liter, right? So we've understood this पूरा। इसके फॉर्मूलाज वगैरह कल आपने याद करके आने so that we can do the questions.